So good morning, dear student. Today we are going to be discuss the very important topic, that is composite or flanged beam in second unit. And this is one important topic when we required to make some composite structure as a beam. So what will be the bending moment shared by that new structure, or you can say the composite beam. So let's see, this is the typical, you can say, the structure of a composite beam, or we can say this is the cross section of a composite beam, where you can easily see that this can be a composite beam is made by joining of two or more beam of a different material. So different, if simple, if you say composite means there must be two or more material. If you come together and make a new section or new material or new structure, that is called the composite. So in this example you can see there is a steel beam which is here inside. Beam is flanged between the two wooden beam. This is a steel and this is a wooden, and bending moment acting on composite beam is shared by steel as well as wooden beam. You can see this is made of like this. Suppose you have a mobile phone, this is made of steel, and you come together to another material, wood or steel or any other material. So what would be that? This kind of structure is called a composite structure. And if it is a beam, so it is called a composite beam. So beam, what the beam are actually function of beam transfer the bending moment. So the bending moment acting on composite beam is shared by the both steel as well as wood, and steel is stronger than wood, we are knowing. So it is, so we can say it sustain higher bending stress. So which element or which material of beam having the higher bending moment, so uh, it can sustain higher bending stress. The conclusion is that you can see that here in this diagram you can see. So ये दोनों आउटसाइड वाले ये वुडन मटेरियल है, दिस स्टील है, ये उसका क्रॉस सेक्शन है, इसके डायमेंशंस फॉर द कैलकुलेशन फॉर डिराइविंग इक्वेशन. सो देयर इज a you can see we have taken some dimension. So that dimension d is the this height of that, this is the d, and this width of the wood is a b, and small b for the steel, and height is same for the steel and wood, and the width same width of the wood is b. So we can say that, my dear students, that we know that the total bending moment of this structure of this beam shared by the both material beam of the both material. So we can write as the total bending moment equal to the bending moment shared by the steel and bending moment shared by the wood. ठीक है. So इन दोनों के जैसे ये हम we can say that bending moment shared by the steel and bending moment shared by the wood. दोनों obviously if wood is दो बीम वुड की हैं तो डेफिनेटली दोनों शेयर करेंगी उस बेंडिंग मोमेंट को. सो वी कैन इन कैलकुलेशन पर्पस वी विल पुट हियर 2 बिफोर mw. सो दिस इज सपोज दिस इज क्वेश्चन नंबर 1. अब एक चीज और देखो यार, एक चीज समझो यहाँ कि अब ये है ये क्या है कि एक कंपोजिट स्ट्रक्चर है. इट मींस इन दोनों में जो भी इलांगेशन कॉन्ट्रैक्शन व्हाटएवर थिंग्स आर शुड बी सेम फॉर द बोथ मटेरियल, अदरवाइज ये अलग हो जाएंगे. सो इसको रिमेन इन कंपोजिट स्ट्रक्चर्स वी हैव टू बी कंसीडर, और वी एंड दिस इज थिंग हैपनिंग आल्सो. सो द strain in at a one plane in the both materials should be same होना चाहिए. चलो उसको और समझते हैं. So that what I already told you, that the strain at any distance from the neutral layer or neutral axis is same for the both steel as well as wooden. I already explained that. So we are assumed that the maximum compressive strain in the wood and steel beam. So EC
E small e C, it is a compressive strain in the wood or steel material, or sigma T is a maximum tensile strain in the wood or steel material. So E S in steel and EW in wood, दोनों चूंकि बराबर होंगे, दोनों बराबर होंगे किसी एक डिस्टेंस पे फ्रॉम द न्यूट्रल एक्सिस। अगर मैं यहाँ पर एक न्यूट्रल एक्सिस से के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर दूं, उसको टेढ़ी लाइन ड्रॉ हो गई। सो एक इफ सपोज आपने यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ करी लाइक दिस, तो इस लाइन के करस्पॉन्डिंग हर पॉइंट पे जो वुड का मटेरियल हो, चाहे वो स्टील हो, देयर वुड बी द सेम स्ट्रेन। सो इसका सिग्निफिकेंस यही हो गया। सो स्ट्रेन इन स्टील एंड स्ट्रेन इन वुड दोनों सेम होगा। सो जब दोनों सेम हो गया तो वी कैन अप्लाई द हुक्स लॉ ऑन दैट। सो क्या लिख सकते हैं, स्ट्रेन इज इक्वल टू क्या हो सकता है, स्ट्रेस अपॉन यंग मॉडुलस फॉर स्टील एंड स्ट्रेन अपॉन यंग मॉडुलस फॉर द वुड। ये लिख सकते हैं वेयर सिग्मा एस एंड सिग्मा डब्ल्यू आर द मैक्सिमम स्ट्रेस डेवलप इन स्टील और वुड। ओके, सो अब क्या करोगे आप इसको इधर भेजो इस साइड और इसको इधर। सो नाउ दिस रिलेशन बिकम सिग्मा एस इज इक्वल टू ई एस अपॉन ई डब्ल्यू सिग्मा। ठीक है, so if E is ES upon EW, यंग मॉडुलस ऑफ स्टील अपॉन यंग मॉडुलस ऑफ वुड, ये जो रेशियो है बेटा इसको बोलते हैं मॉडुलर रेशियो। So this is called a modular ratio. So how can you define the modular ratio? The modular ratio is the young modulus of stronger beam upon young modulus of weaker one. So if suppose a beam are made of, one is the stronger material and another is the weak material, so modular ratio is said to be the young modulus of stronger and young modulus of weaker. So you have to be remember, but in this case we have taken the steel and wood. So here we can say that the young modulus of steel upon young modulus of wood. But in the next case, if somewhere the new type of composite come in the question में आए आपको, so जो उसमें बड़ा जो मजबूत होगा तो उसको ऊपर यंग मॉडुलस रखना है, जो उसमें वीक होगा उसका यंग मॉडुलस डाउनवर्ड नीचे रखना है। सो दिस इज कॉल्ड द मॉडुलर रेशियो। सो अब हम इसको लिख सकते हैं सिग्मा एस इज इक्वल टू एम, सिग्मा एस इज इक्वल टू सिग्मा डब्ल्यू। अब हमने इन द लास्ट क्लास वी हैड मेड डिस्कशन ऑन द एम इज इक्वल टू होता है सिग्मा इंटू जेड। कहाँ से आया, कैसे आया, आपको पता है। जेड इज इक्वल टू होता है आई अपॉन वाई मैक्स। ये कल हमने इसको खूब डिस्कस किया। सो यू आर अंडरस्टूड डेफिनेटली। सो ये फॉर द स्टील के लिए है। स्टील का जेड कैसे निकालोगे, जेड क्या होता है, जेड होता है बी डी स्क्वायर बाई 6। कैसे आया, कल हमने डिस्कस किया था। तो हियर बी स्टील का विड्थ इज बी एंड हाइट दोनों के लिए सेम है डी, तो इट इज बी डी स्क्वायर बाई 6। देन फॉर द वुड के लिए भी वी आर गोइंग टू बी यूज द सेम कंसेप्ट। This is a maximum bending stress in the wood material and this is for the section modulus Z. Section modulus Z B small capital B and capital D square by 6 and put to this value, वो इक्वेशन नंबर जो 1 थी और 2 इसलिए बिकॉज वुड दो वुड की बीम है इसलिए उसके लिए 2 आ गया। तो ये आपको एक इक्वेशन बन गई टू फाइंडिंग द बेंडिंग मोमेंट निकालने के लिए। आपका किसी भी बीम का बेंडिंग मोमेंट जो किसी नहीं कंपोजिट बीम का बेंडिंग मोमेंट निकालने के लिए यू कैन यूज दिस फॉर्मूला डायरेक्टली। so let's discuss the another case. Okay, another case is like this. So another case something like this you can say that a composite structure where the depth of steel section is less than the depth of wooden section. Let's try to understand. This is also very simple example. So you can say if such kind of arrangement is there, suppose the steel one is a little less at the both ends, then what would be the bending stress or the bending moment in the for the whole section. ठीक है, देखो अब हम इसको लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड। सो
ये dimensions is given, you can see small वाला for the steel and this big one capital B and capital D for the wood material. Okay, so आप थोड़ा सा समझने की कोशिश करिए, थोड़ा सा बस समझ जाओगे आराम से. I think there is no problem. So my dear, the red one is this red line जो पहले से थी, जो मैंने ड्रॉ की वो वाली नहीं, जो पहले से थी ये रेड लाइन. दिस रेड लाइन जो है आपका समझो ये न्यूट्रल एक्सिस है. सो न्यूट्रल एक्सिस से डिस्टेंस यहाँ ये कितना है dy2, कैपिटल dy2. आई थिंक आप एग्री करोगे क्योंकि ये कैपिटल dy2 होगी, टोटल d है तो उसका आधा इज dy2 हो गई. तो मैं ये लिख सकता हूं कि dy2 समझो यहाँ पर at a distance of dy2 from the neutral axis if the maximum bending strain EW है यहाँ पास इस लाइन पे, इस टॉप मोस्ट पोर्शन पे, मैक्सिमम को हमने ई स्मॉल EW माना है शुरू से. सो द strain in wood at the distance small dy2, what would be the strain value at the distance small dy2? तो ये at small dy2 पे क्या होगा? सो ये हो जाएगा स्मॉल d अपॉन कैपिटल D इंटू EW. ठीक है. सो ये हो गया इस हाइट पे, इस ऊंचाई पे, यहाँ पर सेंट्रल एक्सिस से स्ट्रेन की वैल्यू इन वुड. और हमने पहले ही स्टार्टिंग में स्टेटमेंट दिखा कि एक लाइन पे जो सेम डिस्टेंस पे होगी फ्रॉम द न्यूट्रल एक्सिस, वहां पर द वैल्यू ऑफ द स्ट्रेन विल बी सेम फॉर द बोथ मटेरियल. सो ये जो है डी स्मॉल डी अपॉन कैपिटल डी EW, दिस इज फॉर द वुड एट a distance dy2 from the neutral axis. But the statement is that हमको पता है कि इस वैल्यू ऑफ स्ट्रेन वुड बी सेम फॉर द बोथ मटेरियल. सो हम डायरेक्टली लिख सकते हैं द स्ट्रेन इन स्टील विल बी द स्ट्रेन इन वुड अपॉन इनटू कैप स्मॉल d अपॉन कैपिटल D, और स्ट्रेन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूट्रल एक्सिस. ठीक है, तो ये है कैलकुलेशन आपका आ गया यूजिंग द हुक्स लॉ. अब कुछ नहीं करो भाई साहब, यहाँ पर वैल्यू रख दो इसकी स्टील की और यहाँ पर वुड की. तो ये हो जाएगा सिग्मा S अपॉन ES एंड सिग्मा W अपॉन EW इंटू D अपॉन D. ठीक है. अब जैसे पिछले बार में रखे थे, इसको रखिए वैल्यू रखते हैं. वैल्यू रखने के बाद इसको थोड़ा सा इस वाले ई को ऊपर भेजते हैं, तो इसको सॉल्व किया. सो नाउ इट्स बिकम दिस बिकम M. ये क्या है? मॉड्यूलर रेशियो, हमने पहले डिसाइड करके रखा है. तो मॉड्यूलर रेशियो इनटू सिग्मा W इंटू D/D. सो ये एक अच्छा सा रिलेशन आपको मिल गया. इफ स्टील समवट लेसर देन इट्स हाइट ऑफ द अनदर वुड, और कोई भी अदर मटेरियल भी हो सकता है. सो द सेम थिंग जो था उसी का हम एक न्यूमेरिकल लगाने की कोशिश करते हैं कि किस तरह का न्यूमेरिकल क्वेश्चन आ सकता है आपको. तो चलो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड. So let's take B की value is given capital B, small b, capital D, small d. Okay. If the maximum stress in steel rudder section is not to exceed 120 megapascal and 10 megapascal respectively, calculate the same bending moment on the section and modular ratio is given is 16. डायरेक्ट मॉडुलर रेशियो दिया है आपको, ES अपॉन EW करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट दे दिया है, तो यू कैन यूज सिंपल एज इट इज. बट क्वेश्चन को समझो. द क्वेश्चन इज सेड, क्या बोल रहा है कि द मैक्सिमम स्ट्रेस शुड नॉट एक्सीड ऑफ दैट 120 मेगापास्कल इन स्टील एंड 10 मेगापास्कल इन वुड. इट मीन्स अगर इनसे इंडिविजुअल वैल्यू जो इनकी है 20 और 10 से ज्यादा इंक्रीज हुआ तो ये फेल हो जाएगी. सो ऑलवेज द अब इन दोनों की इतनी ही स्ट्रेस की क्षमता है. जब इसको हम मैच करोगे, कंपोजिट बनाओगे, तो हमको वैसा डिजाइन करना पड़ेगा कि दोनों सेफ लोड बियर कर पाए. तो वही तो, तभी तो सेफ वी कैन कैलकुलेट द सेफ बेंडिंग मोमेंट. ओके, तो लेके चलो समझो, बहुत आसान है. लेट अस सी
the sigma w, you can see here sigma w value suppose taken we have 10 megapascal, हमने पहले ले ली हमने 10 मेगापास्कल लेके अब बीम को डिजाइन करने की सोची। चलो तो ये फॉर्मूला भी है सिग्मा एस अपॉन एम सिग्मा डब्ल्यू डी बाई डी, इसमें सारी वैल्यू रखो। तो सिग्मा एस की वैल्यू कुछ तो आएगी, कितनी आई 180 180 मेगापास्कल। अगर आपने 10 मेगापास्कल यहाँ कंसीडर कर रहे हो और वी आर यूजिंग द सेम डायमेंशन, सो जो स्ट्रेस स्टील में डेवलप होगी दैट वुड बी 128 मेगापास्कल और which is higher than permissible limit of 120. So sigma w की वैल्यू 10 हम नहीं ले सकते, क्योंकि अगर हम 10 लेंगे तो फिर वुड वाली वो वाली क्या बोलते हैं स्टील को ज्यादा लोड आएगा और बोट ब्रेक हो जाएगी। सो सेकंड मटेरियल हमको जो दिया है स्टील, उसको विल कंसीडर इफ द सिग्मा एस इज 120 मेगापास्कल, तो यहाँ से हम सिग्मा w निकालेंगे। अब देखते हैं सिग्मा डब्ल्यू की वैल्यू, तो देखो वैल्यू रखी 120 16 सिग्मा डब्ल्यू 48 ये 18, ये तो दिया है क्वेश्चन में 18 और 16 एंड देन जब सॉल्व किया तो सिग्मा डब्ल्यू की वैल्यू आई 9.375 मेगापास्कल विच इज लेस देन 10 मेगापास्कल। ठीक है, सो दिस इज द परमिसिबल, मतलब यू कैन टेक 120 मेगापास्कल एज योर रेफरेंस वैल्यू फॉर द स्टील, सो योर उसके करस्पॉन्डिंग उड पे जो मेगापास्कल मैक्सिमम हो जाएगा 9.375 मेगापास्कल, 10 नहीं ले सकते, 10 पे वो फेल हो जाएगा। ठीक है, सो लेट्स सी। अब हमको पता है ये टोटल m इक्वल टू एम एस प्लस टू एम डब्ल्यू, एम की अभी तुमने थोड़ी देर पहले ही कैलकुलेट इसको लिख सकते हो, सिग्मा m को लिख सकते हो सिग्मा इंटू जेड और इसको भी सिग्मा इंटू जेड। ये स्टील का है तो सिग्मा स्टील का सिग्मा और ये वुड का है तो स्टील का सिग्मा, देन उसकी वैल्यू बी की वैल्यू गिवन है, कैपिटल डी की वैल्यू दी है और बी कैपिटल बी की वैल्यू इज गिवन, कैपिटल डी वैल्यू इज गिवन। जस्ट पुट ऑल द रेस्पेक्टिव वैल्यूज and we can calculate the bending moment which is acting on the composite structure. So इस composite structure में जो total bending moment add कर रहे हैं वो हम calculate करेंगे। So कैसे, चलो इसको सॉल्व करते हैं। इस वैल्यू रखी, इसको सॉल्व किया, इसको ऐड किया तो ये जो वैल्यू है न्यूटन mm में आया, न्यूटन mm में आ गई ये वैल्यू। सो हमने इसको कैलकुलेट करके इसको न्यूटन मीटर में कन्वर्ट किया तो ये वैल्यू इज बिकम 4742.05 न्यूटन। ठीक है, सो ये हो गया, इस वैल्यू इज द फाइनल आंसर विच इज डिजायर इन द क्वेश्चन। So hope, thank you so much, hope you are understood and thank you so much for attending this lecture.